Good morning, class 2 students. In the previous video of the dual nature of matter, we discussed about what is photoelectric equation, what is photoelectric effect, and with respect to the experimental kit, we discussed like on what factors that photocurrent depends on. Photocurrent is a current produced by photoelectrons. What is photoelectrons? Photoelectrons are the electrons emitted by incidence of photon. From there, we come across different like that the photocurrent depends on intensity. If the intensity is more, the photocurrent is more. This is one of the laws of photoelectric equation, right? Then the photocurrent will produce only for a minimum suitable frequency, that is called threshold frequency. That is one of the laws of the photoelectric effect. Laws of photoelectric effect class में पढ़ा था. Next, और एक law पढ़ा था हमने, the kinetic energy of the electrons emitted is directly proportional to the applied frequency. जितना ज़्यादा एनर्जी होगा इंसिडेंट फोटोन का, उतना ही ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा इलेक्ट्रॉन का. ओके, नाउ जो भी हमने पढ़ा था, वॉट एवर आई हैव टॉट यू, आई हैव एक्सप्लेन यू विथ रेस्पेक्ट टू फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट. Okay, I have taught you with respect to some key concept which was given by Einstein's. Okay, so that we study today. Einstein's photoelectric equation. Einstein ने क्या बोला था? Einstein ने बोला था a very basic concept that he used. He used that whatever the energy the photon is bringing, that energy is used first. Some part of the energy is used to overcome the barrier, and rest of the energy will be given to the kinetic energy of electron. Right? ये है आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, बस जो कि हमने पहले पढ़ा हुआ है. नेक्स्ट, अगर मैं अप्लाई फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट दे दूं तो व्हाट विल हैपन? द इलेक्ट्रॉन विल जस्ट कम आउट ऑफ द सरफेस, इट विल हैव नो काइनेटिक एनर्जी. दैट मींस h न्यू नॉट विल बी इक्वल्स टू phi नॉट प्लस 0. यहां से phi नॉट की वैल्यू मिल गया h न्यू नॉट. सो फाइनली वी गॉट एन एक्सप्रेशन h न्यू इक्वल्स टू h न्यू नॉट प्लस k. Okay, so this is Einstein's photoelectric equation. Okay, h nu equals to h nu naught plus k. Sometimes we write like this also, h nu minus nu naught. So Einstein's photoelectric equation is this, or we can say conservation of energy. ये तुम्हें डेरिवेशन याद करना पड़ेगा बुक से. Okay, कैसे कैसे क्या हुआ वहां पे लिखना पड़ेगा, like the energy of the incident photon used in two ways. First, some part of the energy used to overcome the barrier. Okay, and the rest of the energy is converted to kinetic energy. From conservation energy, we got this. Then you have to substitute this value so that you can get the value of phi naught. And then finally you got the Einstein's photoelectric equation. Okay. Now, with respect to Einstein's photoelectric equation, Einstein has proved all those four laws of photoelectric effect mathematically. Photoelectric effect का जो लॉस दिया था वो theoretical था, experimentally proof करके मैंने लॉ बताया था. अब मैं उसको mathematically proof करूंगा. Okay, पहला लॉ क्या था कि अगर applied frequency का वैल्यू लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो तो एमिशन नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? सी हियर, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगा. न्यू इज लेस देन न्यू नॉट, काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगा. तो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. इसका मतलब ये प्रूव हुआ दैट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑकर्स फॉर अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी. if the applied frequency is less than the minimum threshold frequency, then there is no ejection of electrons, because mathematically is proving that kinetic energy is negative, kinetic energy cannot be negative. That means electrons निकलेगा ही नहीं. ठीक है. नेक्स्ट, आइंस्टाइन ने बोला था वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन एमिट करता है. इसका मतलब क्या प्रूव हो गया? इसका मतलब प्रूव हुआ जितना नंबर ऑफ फोटॉन्स आएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उतना ज्यादा फोटो करंट प्रोड्यूस. वहां से उसने प्रूव किया कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट. ये मैंने पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था. एक्सपेरिमेंटली ग्राफ बना के पता चला था कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट. लेकिन मैं तभी समझा देता है ऐसी चीज, बिकॉज we cannot understand if we don't understand the photoelectric Einstein's theory. तो Einstein's theory यूज करके हमको photoelectric effect ज्यादा अच्छे से समझ में आता है. तो मैंने पहले ही Einstein's theory पढ़ा के बताया था. Now again, according to the book, I'm going to the Einstein's theory. So these are the proof of two laws. So the first law was, what are the laws of photoelectric effect? The first law was that there must be a minimum frequency, okay, of incident photons. Then only the photoelectric effect will come out. Yes, if the applied frequency is less than that minimum threshold frequency, kinetic energy negative होगा, that means no electrons ejected. Next, intensity of photon is proportional to photocurrent. Intensity of photon is proportional to photocurrent. Why? Einstein ने बोला क्योंकि one photon will emit one electron. Next, from this expression, what I can see, kinetic energy is proportional to frequency. That means the kinetic energy of emitted electrons
will be always proportional to the applied incident photon frequency. Applied incident photon energy frequency ज्यादा है, एनर्जी भी ज्यादा होगा. h nu, सिर्फ h एक कांस्टेंट आ जाता है. Clear? Okay. And how he proved the fourth law? What was the fourth law? The fourth law was saying that incidence of photon and injection of electrons were instantaneous. This was told practically. Experimentally देख के बताया गया. अब फोटो ने क्या बोला, आइंस्टाइन ने क्या बोला, कैसे समझाया इसको कि क्यों इंस्टेंटेनियस होता है. दैट्स सुनो. आइंस्टाइन ने बोला incident of photon and ejection of electron, this happens. In between these, what happens? The photon comes, they undergo a elastic collision with electrons, and in this elastic collision there is a transfer of energy from photon to electron. Okay, and then the electron comes out. Now this elastic collision and transfer of energy occurs in a fraction of a second. Okay, there is no time lag between transfer of energies. That's why this photoelectric effect is instantaneous in nature. Photon आएगा, अगर उसका एनर्जी ग्रेटर देन न्यू है, ओके, तो ट्रांसफर करके इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. Because it is undergo elastic collision and transfer of energy all happens in a milliseconds. Okay, there is no time lag, कोई time difference नहीं लगता. Okay, that's why in this way Einstein told that the photoelectric effect is instantaneous. Now यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया, बहुत बड़ा केस आ गया. क्या सुनो, ध्यान से सुनो. आइंस्टाइन ने बोला, क्या बोला, फोटोन आया, फोटोन आके इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, कोलिजन हुआ मतलब फोटोन का मास है, जबकि मुझे पता है लाइट हैज नो मास, लाइट हैज अ वेव नेचर. वो एक वेव है, वो एक पार्टिकल नहीं है कि वो मास होगा. इससे पता चलता है कि लाइट एक पार्टिकल नेचर भी फॉलो करता है. तो आइंस्टाइन ने ही बोला था कि यस, फोटोन का एक पार्टिकल नेचर भी होता है, जिसके कारण वो टकरा है. ये हम बाद में वापस पढ़ेंगे, दैट इज डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस. फिर डी ब्रॉगली ने अच्छे से उसको स्टडी किया, फिर बताया उसको नहीं, एक लाइट पार्टिकल जैसा भी काम करता है, उसका मास भी है, उसका वो वेव नेचर भी जैसा काम करता है. वैसे ही एक बॉडी, हमारा ऐसा बॉडी जिसका मास है, वो पार्टिकल तो है, साथ साथ उसमें वेव भी है. सो एवरी बॉडी हैज ड्यूअल नेचर. दैट इज द टॉपिक एक्चुअली, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर. ओके, दैट वी स्टडी आफ्टर सम टाइम. यू अंडरस्टैंड क्लास? नाउ नेक्स्ट इज फ्यू graphical concept, numerical circums. Okay, those things I'm writing down. ये तुम्हारे बुक में नहीं मिलेगा, ये तुम्हें ध्यान से लिखना पड़ेगा क्लास. Okay, overall what I told you, whatever I can see, whatever you see in the board, please note it down because later on you will get confused then. Okay. Now हम क्या करेंगे, हम different graphical concept पढ़ेंगे from Einstein's photoelectric equation. These graphs may act as a numerical also, and sometimes they simply ask you the graph. Okay, I hope you understand what I'm talking about class. सबसे पहला ग्राफ, or we can say topic डाल दो, graphical questions related to Einstein photoelectric equation. इस इक्वेशन को लेके देयर आर मेनी ग्राफिक इक्वेशंस मे कम इन एग्जामिनेशन. ओके, सबसे पहला ग्राफ होता है ना. बेसिक आइडिया क्या है पहले ये जानो. बेसिक आइडिया है y इक्वल्स टू समथिंग टू x प्लस समथिंग के फॉर्म में लिखना है. वहां से ये क्या हो जाएगा, स्लोप, और ये क्या हो जाएगा, y इंटरसेप्ट. ओके, यहां से हम कभी हमें बोलता है स्लोप और y इंटरसेप्ट निकाल के दिखाओ. So from the graph we need to find the slope and y-intercept also, as well as we should know how to plot the graph. So let's go for one by one. Okay. Stopping potential versus frequency of the applied of the incident photon. मुझे इसका ग्राफ निकालना है. ठीक है, इसका ग्राफ निकालने के लिए हमने इसका ग्राफ पढ़ा है पहले भी, लेकिन हमने इसको थ्योरेटिकली पढ़ा है. अब हम उसको मैथमेटिकली पढ़ेंगे यूजिंग आइंस्टाइन. आइंस्टाइन ने सब कुछ मैथमेटिकली करके दिखा दिया था. ओके, तो इसके लिए क्या करो, पहले आइंस्टाइन की इक्वेशन लिखो. h nu इक्वल्स टू phi naught प्लस k, है ना बेटा. ओके, व्हाट इज k, h nu माइनस phi naught. ठीक है, अब यहां पे तो मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, तो वी नो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं. व्हाट इज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, e v naught. दिस यू नो, maximum kinetic energy equals to e v naught, that is called stopping potential.
एच न्यू माइनस न्यू नॉट. तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. y इज दिस, x इज दिस. तो y इक्वल्स टू एम एक्स. y सिंगल होना चाहिए, तो इसके साथ जो भी है उसको उधर लेके आओ, ऐसा आ जाएगा. सो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. ओके, देयरफॉर कंपेयरिंग with y equals to mx plus c. y axis, mx, x is new frequency. So that therefore what is slope of graph? Slope of the graph कितना है? कौन सा ग्राफ? v naught versus mu. कितना है slope of graph? h by e. And what is y intercept here? Y intercept is minus phi naught by e. हो गया. Okay. Now the next thing is how to plot. प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ. नाउ प्लॉटिंग ऑफ द ग्राफ कैसे करेंगे? एक बार x एक्सिस को जीरो करो, एक बार y एक्सिस को जीरो करो, बस हो गया. ओके, तो एक बार x एक्सिस को जीरो करते हैं और एक बार y एक्सिस को जीरो करते हैं, जॉब इज डन. तो मान लो ये है v नॉट वर्सेस, दिस इज योर v नॉट एंड दिस इज योर म्यू. ओके क्लास, तो एक बार मैं x एक्सिस को, बिकॉज फॉर प्लॉटिंग अ ग्राफ वी नीड 2 points, then only we can join them. Now, how we understand it's a line? It's a line. Why? Because both y and x axis, y and x coordinate has a coefficient, has a power 1 on it. यहाँ भी power 1 है, यहाँ भी power 1 है. तो it's the equation of a line. हाँ, एक का power 2 होता है, एक का power 1 होता है, then maybe a parabola also. Okay, so but both the variables x and y and x, both has power 1. That means it's a line. तो हम क्या करेंगे? 2 points निकालेंगे. तो let x axis को zero कर दो. Let mu equals to 0. इस equation में mu 0 है. तो y कितना आएगा? माइनस फाइव नॉट बाई ई. देयरफॉर पॉइंट कितना होगा? x कॉमा 0. तो ये पॉइंट होगा था 0 कॉमा माइनस 5. समझ राइट क्लास? 0 कॉमा माइनस फाइव नॉट बाई ई. ये एक पॉइंट मिल गया मेरे को. डन. ओके, नेक्स्ट अब क्या करो? लेट y इक्वल्स टू 0. y कोऑर्डिनेट को 0 करो. y कोऑर्डिनेट इज v नॉट. ओके, इसको 0 करो. यहां से क्या निकलेगा? ये 0 आ जाएगा, तो ये फाइव नॉट इधर चलाएगा, इक्वल्स टू h बाई ई न्यू. तो यहां से क्या आ गया? व्हाट इज x एक्सिस? x का वैल्यू कितना आएगा? न्यू इज x एक्सिस, फाइव नॉट बाई h. देयरफॉर व्हाट इज द पॉइंट? पॉइंट इज फाइव नॉट बाई h कॉमा 0. तो समझे यहां पे होगा. यस क्लास, फाइव नॉट बाई h कॉमा 0. ओके, बस दोनों लाइन को जॉइन कर दो, हो गया. यही ग्राफ हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन यहां से पढ़ा था हमने. डन. आई होप यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग क्लास. ओके, दिस इज वन ऑफ द ग्राफ. ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं. आई कैन डिस्कस 1 or 2. ओके, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी. अब बोलेगा काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओ. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू हियर. पहले हमने क्या किया? हमारा काम दो काम है. पहला हमारा काम है इक्वेशन को इस तरीके से लिखो, स्लोप और y इंटरसेप्ट निकालो, y इक्वल्स टू mx प्लस c लिखो. नेक्स्ट मेरा काम था प्लॉट करना. तो प्लॉटिंग इज वेरी इजी. एक बार x कोऑर्डिनेट को 0 करो, एक बार x कोऑर्डिनेट को 0 करो, एक बार y कोऑर्डिनेट को 0 करो. यहां से 2 पॉइंट मिल गया एंड जॉइन दोस 2 पॉइंट्स. जॉब इज डन. नाउ अगेन काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी. तो मुझे ये वाला एक्सप्रेशन देखना पड़ेगा. h न्यू इक्वल्स टू फाइव नॉट प्लस k. अब मुझे k की जगह e v नॉट लिखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज आई डोंट नीड स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो सी y इक्वल्स टू mx. So if I compare, what is slope h? Y equals to mx plus c. What is y intercept? Minus 5 naught. हो गया. We got the slope, we got the y intercept. Done class? Wait for a second. Okay, now go for the plotting. Same concept class. हाँ, प्लॉटिंग कैसे करेंगे? एक बार x कोऑर्डिनेट को 0 करो. लेट x कोऑर्डिनेट इज न्यू. x कोऑर्डिनेट ये वाला होता है, ये होता है x कोऑर्डिनेट, ये होता है y कोऑर्डिनेट. दिस वी नो. x कोऑर्डिनेट को 0 करो, यहाँ पे 0 करो, तो y कोऑर्डिनेट कितना आएगा? माइनस 5 नॉट. तो पॉइंट्स कौन सा आया? x कॉमा y. x कॉमा y. नेक्स्ट अब क्या करो? y कोऑर्डिनेट को 0 करो. लेट k इक्वल्स टू 0. तो h न्यू क्या हो जाएगा?
फाइव नॉट, ये फाइव नॉट उधर चला गया, तो वहां से एक्स एक्सिस कितना है, फाइव नॉट बाई एच, तो पॉइंट क्या है, एक्स कॉमा वाई। ओके, अब दोनों पॉइंट्स को प्लॉट कर दो, हो गया। सो दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी along y axis, this is frequency, applied frequency along x axis। तो एक पॉइंट क्या है, 0, 5 नॉट, somewhere 0, minus 5 नॉट। ओके डन, और ये क्या हो जाएगा, इधर आएगा पॉजिटिव 5 नॉट बाई h, 0। अगेन जॉइन दिस लाइन, done, job is done। We got the equation, we got the slope and y-intercept also, as well as we learned how to plot the graph। Class, do you understand? So basically there are two graphs which ask in exam. One is stopping potential versus frequency, and there is kinetic energy versus frequency। Okay, so this is all about photoelectric effect, and in this photoelectric effect, by the fourth proof by the Einstein, he proved the fourth law considering photons as a particle। Okay, यही चीज फेल हो जाएगा अगर मैं फोटॉन्स को एज अ वेव इमेजिन करूंगा। इफ आई इमेजिन फोटोन एज अ वेव, इफ आई गो टू द वेव नेचर ऑफ लाइट, नाउ वेव नेचर ऑफ लाइट क्या होता है, बेसिकली इट्स रिलेटेड टू ऑल द कॉन्सेप्ट यू स्टडीड इन वेव ऑप्टिक्स। ओके, वेव ऑप्टिक्स में जो भी थ्योरी तुम पढ़ोगे, उन थ्योरी को यूज करके मैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कभी समझा नहीं पाऊंगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को मैं समझा तभी सकूंगा ओके जब मैं एक फोटोन्स को पार्टिकल से मानूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? जब मैं बोलूंगा कि एनर्जी इंटेंसिटी ऑफ फोटोन इज नथिंग बट वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन, मतलब इंटेंसिटी ऑफ फोटोन इज नंबर ऑफ फोटोन्स। जैसे आई एम कंसिडरिंग नंबर ऑफ फोटोन्स, आई एम इमेजिनिंग वन फोटोन एज वन पार्टिकल। तो हमने जो भी चीज यहाँ पे प्रूव किया है, आइंस्टाइन ने, हमने नहीं, आइंस्टाइन ने जो भी चीज यहाँ पे प्रूव किया है उसमें उन्होंने मान लिया कि एक फोटोन क्या है, एक फोटोन एक पार्टिकल है। Especially the fourth law, how he proved elastic collision, matlab photon has a mass. Next, he proved that he considered photon as one photon, two photon, three photon. That is considering as a particle. Okay, लेकिन अब we will see now how that the photoelectric effect cannot be explained by wave nature of light. Okay, I will discuss now कि wave nature of light photoelectric effect को क्यों समझा नहीं सकेगा। Okay, so let's go for the next topic. Okay class, so next topic, please you will find this topic in a refresher. Photoelectric effect cannot be explained by wave nature of light. Now, whatever I am about to say you now here, those are actually wave optics. Okay, in wave optics, what is the wave nature? थोड़ा बहुत हम समझते हैं। हाँ, wave nature में होता क्या है? सबसे पहले हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा। रे ऑप्टिक्स में लाइट is considered as a ray, but in wave optics, light is considered as a wave. Okay, when we consider a wave, then what is energy of the wave? Energy is proportional to intensity, and intensity is proportional to amplitude square. ये जानना पड़ेगा। Intensity is nothing but amplitude square. Now, किसका amplitude? जो लाइट होता है, लाइट जो आ रहा है, इस लाइट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं ऐसे करके। Okay, these are called electric field vectors, and this is called amplitude of electric field. तो इसका एम्पलीट्यूड अगर ज्यादा हुआ, ओके, सो इफ आई से एम्पलीट्यूड, इसका मतलब व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट these things you need to understand, then only you will understand that part. Amplitude nothing but electric field vectors। okay, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ना उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसका अगर बड़ा हुआ देन एम्पलीट्यूड ज्यादा है, एम्पलीट्यूड ज्यादा मतलब इंटेंसिटी ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा मतलब एनर्जी ज्यादा है उस लाइट का। डन, क्लियर? So from all these things, what we understand that the energy of the light is totally depending on amplitude। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है। यहां से ही समझ में आ रहा है ना? Yes or no? नेक्स्ट तुम्हें समझना है जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जब भी ऐसे करके लाइट ट्रेवल करता है ना, ये तो हुआ रे ऑप्टिक्स, बट अकॉर्डिंग टू वे ऑप्टिक्स लाइट ट्रेवल इन टर्म्स ऑफ प्लेन्स। एक प्लेन सरफेस होता है जिसको हम बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं हम इसको? वेव फ्रंट। ये एक प्लेन सरफेस होता है, तो लाइट ऐसे ट्रेवल करता है, तो और जो भी एनर्जी होता है लाइट का वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इस वेव फ्रंट पे। ओके, सो दिस आर द टू थिंग्स वी विल कंसीडर हियर, एंड वी विल सी दैट इफ आई इमेजिन द वेव, दिस इज कॉल्ड वेव नेचर। इफ आई इमेजिन दिस नेचर ऑफ लाइट, वी वोंट एबल टू एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटोलिटिक इफेक्ट काम ही नहीं करेगा अगर मैं ये कॉन्सेप्ट को यूज करूं लाइट का। ओके, ये हम प्रूव करने वाले हैं। और जैसे ये कॉन्सेप्ट को यूज करके फोटोलिटिक इफेक्ट काम ही नहीं करेगा, प्रूव ही नहीं होगा, दैट मींस व्हाट, लाइट वहां पे in photolytic, when the light is showing photolytic effect, that means there, if the light was behaving like wave, then these things will happen. And if this thing happens, photolytic effect observations cannot be explained. That means light in photolytic effect does not act like wave, it is acting like particle. That we understand. Do you understand class? Okay, चलो बात करते हैं। कैसे बात करते हैं? सीधा पहला, फोटोलिटिक इफेक्ट में क्या बोला था? फोटोलिटिक इफेक्ट में बोला गया था कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू फोटो करंट। जितना इंटेंसिटी बढ़ेगा उतना फोटो करंट प्रोड्यूस होगा। पहले लेट्स हैव अ रिकैप कि फोटोलिटिक इफेक्ट क्या क्या बोलना चाहता था, ठीक है ना। फोटोलिटिक इफेक्ट बोल रहा था पहला, जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा लाइट का, ओके, उतना ज्यादा फोटो करंट प्रोड्यूस होगा, पहला ये। दूसरा, जितना ज्यादा एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है तभी फोटोलिटिक इफेक्ट होता है, नहीं तो फोटोलिटिक इफेक्ट नहीं होता है, राइट। तीसरा, जो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, क्लियर। हाँ, लास्ट वाज जो फोटोलिटिक इफेक्ट है वो इंस्टेंटेनियस है। ओके, तो हम देखेंगे इन चीजों का इनवैलिडेशन, वैलिड नहीं करेगा अगर मैं वो कंसिडर करूं, ठीक है ना। अब देखो यहां से मुझे क्या पता चला, एनर्जी ऑफ द लाइट डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड, राइट। ये पता चला ना, एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड। यस और नो क्लास, एम्पलीट्यूड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो इफ आई से एनर्जी ऑफ अ लाइट इंक्रीजेस, दिस इंप्लाइज एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस और इंटेंसिटी इंक्रीजेस। यस क्लास, इंटेंसिटी बढ़ी। अरे हाँ है ना, जैसे इंटेंसिटी बढ़ा, एम्पलीट्यूड बढ़ा, दैट मींस कहने से इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया तो उस इलेक्ट्रॉन्स में कुछ फोर्स लगेगा ना, QE2E, दैट मींस फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, क्लियर। अगर फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गया तो उसमें एक्सीलरेशन आ जाएगा, एक्सीलरेशन भी बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर जाएगा, यही होगा ना। दैट मीन्स अगर मैं लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाऊं अकॉर्डिंग टू वेव नेचर, पार्टिकल नेचर नहीं, हमारा हमने पढ़ा है फोटोलिटिक इफेक्ट में लाइट इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा मतलब क्या, नंबर ऑफ फोटोज बढ़ाऊंगा। वो वाला थ्योरी आइंस्टाइन ने बोला था, मैंने नहीं बोला। हम यहाँ पे आइंस्टाइन का थ्योरी नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ पे वेव नेचर बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू वेव, अगर लाइट वेव जैसा काम करता और मैं बोलूं इंटेंसिटी बढ़ रहा है लाइट का, इसका मतलब उसका एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है तो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू बढ़ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ रहा है मतलब फोर्स एक्सपीरियंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, मतलब एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, मतलब वो इजेक्ट हो जाएगा। मतलब फोटोलिटिक इफेक्ट बढ़ाने के लिए इंटेंसिटी बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा होता है, फोटोलिटिक इफेक्ट तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है ना, इंटेंसिटी पे नहीं डिपेंड करता है। Do you understand what I'm trying to say you? Please pause the video and repeat it again and try to understand what I'm saying. समझ में आया क्लास? ओके, उसमें ज्यादा एक्सेलरेशन आ गया। अब अगर मैं इंटेंसिटी फर्दर बढ़ाऊं, उसके इलेक्ट्रिकल वैल्यू और बढ़ जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स लग रहा है बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन और बढ़ जाएगा, मतलब वो ज्यादा एक्सेलरेशन आ गया उसमें। तो एक्सेलरेशन अगर ज्यादा आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा ना। तो यहां से ओवरऑल क्या पता चला, काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ये पता चला ना कि काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बट इज इट ट्रू? नो, फोटोलिटिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी वाज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। दिस वाज अ ट्रू ऑब्जर्वेशन वी फाइंड एक्सपेरिमेंटली। बट इफ वी कंसीडर लाइट एज अ वेव, वी आर ऑब्जर्विंग दैट काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी। ओके, क्योंकि यहां पे इंटेंसिटी था इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड, लेकिन एक्चुअल में इंटेंसिटी है नंबर ऑफ फोटॉन्स, बिकॉज दैट टाइम वी आर कंसीडरिंग फोटोन एज अ पार्टिकल। ये समझ में आया कि नहीं आया? प्लीज रिपीट द वीडियो अगेन, पॉज द वीडियो, रिपीट इट एंड थिंक अबाउट इट व्हाट आई एम सेइंग। ओके क्लास, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। फोटोलिटिक इफेक्ट जो हमने एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया, उसका ऑब्जर्वेशन था कि मैं किसी भी लाइट को गिराऊं तो फोटोलिटिक इफेक्ट नहीं होता था। एक मिनिमम सुटेबल फ्रीक्वेंसी होता था उसके, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उसके बराबर है, उससे ज्यादा फेंकना पड़ता है। द इंसिडेंट फोटोन शुड हैव अ
frequency either equal to threshold frequency or more than threshold frequency, then only the electron will come out. Okay, मैंने यहां पे क्या पढ़ा, light is acting like a wave and light energy is nothing but amplitude, intensity. इसका मतलब क्या कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कब होगा, जब उसमें कुछ एनर्जी आएगा. क्लियर? उसमें जब एनर्जी आएगा वो कौन लाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ाने से आएगा. मतलब अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं लाइट का तो उसका एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू वेव नेचर. अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूं लाइट का तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो अपने उसका उस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी बढ़ जाएगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, उस इलेक्ट्रॉन में एनर्जी ज्यादा जाएगा तो वो इजेक्ट हो जाएगा. इसमें कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी का जरूरत नहीं है मेरे को, बस मुझे इंटेंसिटी को बढ़ाता जाना लाइट का. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लिया, उससे अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकला तो उस लाइट का इंटेंसिटी बढ़ाता जाऊंगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. ये वेव थ्योरी के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं. बट क्या ऐसा होता है, एक लाइट इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला, क्या उस लाइट का तुम फर्दर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा? नहीं. ऐसा नो, उस इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, तब उस फोटोन का फ्रीक्वेंसी बढ़ाना पड़ेगा, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा. अगर मैंने कोई एक लाइट भेजा, एनी लाइट एट इंसिडेंट ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी which is less than threshold frequency of that material, then the electron will never come out. Whatever level of intensity I increase, that we studied in the actual experimental concept. But the wave nature is saying कि इलेक्ट्रॉन निकलता है ड्यू टू एनर्जी, उसमें एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी फोटोन में, लाइट में एनर्जी कैसे आता है? एम्पलीट्यूड बढ़ाने से. तो ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ा देता हूं, इंटेंसिटी बढ़ा देता हूं लाइट का, तो उसमें एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स में एनर्जी ज्यादा चला जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. दैट मींस द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी, इज नॉट डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी. दैट इज रॉन्ग. क्लियर? द थर्ड केस में हमने लास्ट वाला प्रॉपर्टी के साथ डील किया. लास्ट वाला लॉ क्या बोलता है, दैट this incidence of photon and ejection of electrons are instantaneous in nature, right? There is no time lag between transfer of energy from photon to electron. This was according to Einstein's, where Einstein has considered the photon as a particle. अब अगर मैं वेव नेचर में बात करूं तो वेव नेचर में मैंने क्या पढ़ा, जो एनर्जी ऑफ लाइट होता है वो वेव फ्रंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, किसी एक पॉइंट में नहीं रहता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. तो जब ये वेव फॉर्म इंसिडेंट करेगा मेटल सरफेस पे, जब ये वेव फॉर्म इंसिडेंट करेगा ऐसे करके मेटल सरफेस पे, ओके, तो एनर्जी तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये एनर्जी सारा ट्रांसफर होने के लिए इट विल टेक सम टाइम. दैट मींस टाइमलाइन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू वेव. एट एन इंस्टेंट थोड़ी सारा एनर्जी चला जाएगा, बिकॉज इट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. It is not at a single point. It is not acting like a particle. It is acting like a wave. So it is uniformly distributed. So transferring of energy will take time. But does it take time in photoelectric effect in practical experiment? No. So these are the ways we can say that the photoelectric effect cannot be explained by wave nature of light. That means अगर मैं लाइट का वेव नेचर को इमेजिन करके फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझने का कोशिश करूं तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में नहीं समझ पाऊंगा. इसका मतलब ये प्रूव होता है दैट द लाइट when showing photoelectric effect, that light is not acting like wave, it is acting like particle. Okay, now we will go to the next topic, that is this dual nature, de Broglie's hypothesis. Okay, now see, first we will study what is dual nature of light. Okay, then we will go for the dual nature of matter, and that is the topic is dual nature of matter and radiation. Radiation means I'm talking about light. Now, how a dual nature of light acts? It acts like wave in the whole optics. पूरे ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स का जो चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स जो चैप्टर है, उसमें हमने लाइट को वेव जैसे इमेजिन किया. And sometimes a question comes like, write few phenomena which shows wave nature of light. Like, what are those phenomena? Interference, which we studied in wave optics. Next, diffraction. These are the different phenomena which shows the wave nature of light. Okay. Now, if I say particle nature of light, particle nature क्या होगा? तो few phenomena which shows particle nature. One we studied, photoelectric effect. Okay. And the other one, just the name you have to understand, Compton effect. इसके बारे में हमको कुछ स्टडी नहीं करना है, बस नाम याद रखना है. ओके, दीज नेम्स यू विल आल्सो फाइंड इन बुक. कॉम्पटन इफेक्ट,
तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या क्या है, ठीक है ना। सो लाइट एक्ट लाइक अ वेव नेचर, गिव यू फेनोमेना, लाइट एक्ट लाइक अ पार्टिकल नेचर, गिव यू फेनोमेना। ओके, नेक्स्ट सिमिलरली देयर इज अ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर आल्सो। ये किसने सोचा? ये इस बंदे ने सोचा, डी ब्रॉगलीज ने सोचा। दैट इज डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। Now why it is called hypothesis? It is called hypothesis because डी ब्रॉगली ने सिर्फ सोचा था, प्रूव नहीं किया। उसने सिर्फ इमेजिन किया, उसने सिर्फ एक थ्योरी दिया, उसने प्रूव नहीं दिखा पाया। एक्सपेरिमेंटली उसने कुछ करके दिखाया नहीं कि हाँ मेरा जो हाइपोथेसिस वो सही है। एक्सपेरिमेंटली इसको दिखाया गया था डेविजन एंड जर्मन में। Division German experiment is an experiment which first proved the de Broglie's hypothesis. The hypothesis is just a theory given by this de Broglie scientist, but he couldn't explain it practically, experimentally. Okay, so that Division German experiment was early in our syllabus. Now it is not in our syllabus, so you don't need to study. But please remember, de Broglie's ने hypothesis दिया था, de Broglie's ने prove नहीं किया था। प्रूफ कौन कराया था? डाविजन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट ने किया था। ओके, नाउ ये ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर क्या है? पहले हम बात करते हैं पार्टिकल नेचर का। पार्टिकल नेचर पूरा क्लास 11 पढ़ा है। एवरी बॉडी हैज सम मास, बस हो गया। सिंस इट हैज मास, इट इज एक्टिंग लाइक अ पार्टिकल। ओके, व्हाट वी नीड टू स्टडी इज वेव नेचर। सो अ बॉडी व्हिच हैज सम मास is acting like particle, and those particles also behave like waves. It was given as a hypothesis by de Broglie, and those waves are called as matter waves. क्या बोलते हैं उसको हम? Matter waves, also called as de Broglie's waves. Okay, and this is just a hypothesis. उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा अगर लाइट दो नेचर दिखा सकता है तो हमारा मैटर, हमारे बॉडी में मास है, हमारे पास भी दो नेचर। एक तो हमारा बॉडी मास है, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट पार्टिकल नेचर, बट हमारे बॉडी से भी एक वेव निकलता है, दैट इज कॉल्ड मैटर वेव्स। ओके, जब हम मूव करना स्टार्ट करते हैं, वी एक्ट लाइक अ वेव, दैट इज कॉल्ड एज मैटर वेव्स और डी ब्रॉग्लीज वेव्स, एंड दैट इज ओनली वेव नेचर ऑफ मैटर। What is a matter which has some mass? What is a particle which has some mass? We can consider it like that. Okay, so you understand what is the wave nature of matter? Wave nature of matter means what? A particle which has some mass, when that body start moving, they start emitting waves. That is called matter waves, and that is only called wave nature of matter. Okay, so that is only de Broglie's hypothesis. अब de Broglie's ने hypothesis तो दे दिया, उसने theory तो दे दिया, उसने theory दे दिया कि हर बॉडी जिसका मास है वो कुछ वेव एमिट करेगा। ओके, अब उसने इसी चीज का हाइपोथेसिस से एक वेवलेंथ का एक्सप्रेशन भी डिराइव किया, डी ब्रॉग्लीज वेवलेंथ। दैट मींस वेवलेंथ ऑफ दिस मैटर वेव्स। एनी बॉडी व्हिच हैज सम मास, व्हेन इट स्टार्ट मूविंग विद सर्टेन वेलोसिटी, दैट बॉडी स्टार्टेड एमिटिंग वेव्स। उस वेव्स का वेवलेंथ कितना होगा? ठीक है, उस वेव का वेवलेंथ कितना होगा ये कैसे पता चलेगा? तो उसने क्या सोचा, बड़ा इसने ना थोड़ा आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट लिया। पहले फर्स्ट ये रिलेशन जो मैं यहां पे कर रहा हूं, ये बुक से आप नोट करोगे, ठीक है ना। सो यू आर नॉट डूइंग इट हियर, आई एम डूइंग इट इन रफ वे। अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स कांस्टेंट, आइंस्टाइन्स अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स कांस्टेंट concept, Planck's theory, energy of a photon is h nu. Okay, this is called wave nature. Wave nature of light. Okay, ये क्या है? Wave nature of light है। लाइट को एज अ फोटोन माना, और तो मैंने बोला उसका एनर्जी ऑफ फोटोन इज h nu. We all know energy of photon is h nu. पता है मेरे को। That means is equals to s c by lambda. We know what is c. C equals to frequency to wavelength. तो ये जो वेवलेंथ आया, ये जो वेवलेंथ आया, ये वेवलेंथ कौन सा वेवलेंथ है? ये वेवलेंथ है लाइट एज अ वेव। ओके, लाइट एज अ वेव, लाइट को मैं वेव जैसा मान रहा हूं, वो वेवलेंथ ये है। अब डी ब्रॉग्ली ने क्या सोचा? आइंस्टाइन ने एक मास एनर्जी रिलेशन दिया था। उसने बोला था, आइंस्टाइन ने बोला था, आइंस्टाइन का थ्योरी है लेकिन डी ब्रॉग्ली यूज कर रहा था दिमाग में, राइट अंडरस्टैंड।
उसने हाइपोथेसिस तो दे दिया, उसका उसने एक जनरलाइज एक्सप्रेशन भी दिया, हाउ टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द मैटर वेव, उसको कैसे डिराइव किया, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, तो मुझे पता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज h nu, दैट इज sc by lambda, where light is act like a wave। अब इसका मतलब लाइट में कुछ एनर्जी है, एक एक फोटोन का एक एनर्जी होता है। अब आइंस्टाइन बोलता है इफ अ बॉडी हैज एनर्जी इट विल हैव मास। ओके, व्हाट आई वांट टू से इज दैट आइंस्टाइन ने बोला था मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। इफ अ बॉडी हैज एनर्जी, okay, it will have corresponding some mass. If a body has some mass, it will have corresponding some energy. What is that energy? That energy equals to mc square, m into velocity of body. तो मैं यहाँ पे लाइट के साथ बात कर रहा हूँ, तो velocity of light होगा। Okay, E equals to mc square. It is called energy mass equivalence. What this theoretically mean that if any body has some mass, it will have equivalent of energy. When the body will start moving with speed of light, then mc square is the equivalence energy of the body which has some mass. Or if the body has some energy, that is it has some equivalence mass m. That is called energy mass equivalence. और मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने फोटोन को पार्टिकल मान लिया। अब हाइड्रोजन बोलता है अगर मैं एनर्जी मास इक्विवेलेंस डालूं तो सिंस फोटोन का कुछ एनर्जी है, मतलब फोटोन का कुछ मास होगा। समझ में आया? फोटोन का कुछ एनर्जी है, अकॉर्डिंग टू व्हीच एनर्जी का वैल्यू इतना होता है। सिंस एनर्जी है तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन उसका मास भी होगा। तो डी ब्रॉगली बोलता है कि हाँ, अगर फोटोन की एनर्जी है तो अगर मैं आइंस्टाइन का थ्योरी यहाँ पे लगाऊं तो फोटोन का कुछ मास भी होगा। तो दिस इज व्हाट मास ऑफ फोटोन, ये हो गया पार्टिकल नेचर। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा बिकॉज बोथ आर एनर्जी ऑफ फोटोन ओनली। हियर आई एम टेकिंग एनर्जी ऑफ फोटोन, taking photon as a particle, but here I am taking energy as a photon, taking photon as a wave. Clear? That means these two are equal, sc by lambda. तो यहां से lambda कितना है, h by mc। अब ये जो वेवलेंथ का एक्सप्रेशन है, इसमें मैंने फोटोन को पार्टिकल माना, मतलब उसका कुछ मास है। ओके, दैट मीन्स दिस इज व्हाट मैटर वेव। द फोटोन which has some mass now m, if that photon which is acting like a particle has a wavelength h by mc, okay, or we can say h by momentum of photon. Do you understand? अब मैं इसको मैंने पूरा फोटोन जैसा माना। Now consider it as any body, okay, a body of mass m with velocity v, तब उसका डी ब्रॉगली's wavelength कितना होगा, h by mv. Momentum of the body is mv. So this is the de Broglie's wavelength, or we can say matter wavelength. Matter wave ka wavelength. Okay. So what is matter wavelength? A body which has some mass, when it start moving with some velocity v, it emits wave. Those are called as matter waves, and uska wavelength है h by mv, h by momentum. But he derived this expression considering photon as a particle using the help of Einstein mass energy equation. तुम्हें ये क्रिस्टल क्लियर समझना पड़ेगा क्लास। ट्राई टू रिपीट द वीडियो, ट्राई टू सी द बुक एट द सेम टाइम, synchronize yourself both of them, book and the video, and then study. Okay, so finally we understand what is de Broglie's wavelength. Is the wavelength of the waves emitted by matter, or in short it is also called as matter wavelength. Okay, now from here what we understand, there are different conclusions written in a book. Those conclusions you need to study. एक wavelength is inversely proportional to velocity. Mass constant is a constant, h is constant. Okay, mass को देकर constant मान लो, velocity से inversely, इसका मतलब अगर velocity ज्यादा है तो wavelength छोटा है, और अगर velocity बहुत कम है तो wavelength बहुत बड़ा है। अब मेरी बात सुनो, for a body which has some mass, उसका velocity बहुत ज्यादा नहीं हो सकता। We know any body cannot move with the speed of light. Impossible ना, वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत छोटा चलता है, मतलब उसका वेलोसिटी बहुत छोटा होता है, मतलब उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है। अगर वेवलेंथ बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो वो वेव हमें दिखेगा नहीं। कैसे? वेवलेंथ है क्या, दिस इज द वेवलेंथ। अगर ये वेवलेंथ बहुत बड़ा हो तो हमें दिखेगा नहीं। ओके, दैट्स व्हाई हमें नॉर्मल मैटर का वेव्स दिखता नहीं है। ओके, हम उसको नहीं पता कर सकते
क्योंकि उसका वेलोसिटी बहुत कम होता है हमारा बॉडी का। हाँ, अगर मैं अपने आप को बहुत ज्यादा स्पीड से चलाने लगूं तब मेरे से जो मैटर वेव्स निकलेगा ना, दोज आर सिग्निफिकेंट, वी कैन सी, वी कैन कैलकुलेट द वेवलेंथ्स आल्सो। ओके, नेक्स्ट, it is inversely proportional to mass. If a body has a heavier mass, a body will have small wavelength. If a body has a smaller mass, it will have long wavelength. ये सब चीज हमें दिख रहा है। Clear class? Okay, so there are many more conclusions are there. I have explained only the few things. Please study on your own each and every conclusion. There are total, let me tell you, the first 5 conclusions you need to study. Okay, the first 5 conclusions. Okay, उसमें और एक मैं बता देता हूँ, थर्ड नंबर, अगर बॉडी का वेलोसिटी 0 हो जाए, दैट मीन्स नॉर्मल बॉडी रेस्ट पे, बॉडी एट रेस्ट। सी, वी आर डीलिंग विद बॉडीज, वी आर नॉट डीलिंग विद फोटोन्स। मैं, आप, पेन, दैट आई एम टॉकिंग। तो वेवलेंथ क्या आ रहा है? इंफिनिटी, h/0, इंफिनिटी। दीज वेवलेंथ्स वी कैन नेवर सी, इनसिग्निफिकेंट है, बट वेव्स है, वेव्स निकल रहे हैं, बट हमें वो वेव्स कभी जिंदगी में नहीं दिखेगा, तो इसका वेवलेंथ इंफिनिटी। क्लियर? अंडरस्टैंड क्लास? सो दिस इज द de Broglie's hypothesis and this is the de Broglie's wavelength expression. Okay, now there is a very important thing you need to understand. Using the de Broglie's concept, we are interested in finding the de Broglie's wavelength of an electron or any charged particle. हमने तो यहाँ पे बॉडी लेके बात किया ना, बॉडी का मास m होगा, बॉडी मीन्स व्हाट, आप, मैं, पेन, बट नाउ वी डील विद द सबएटॉमिक पार्टिकल्स। सबएटॉमिक पार्टिकल्स मतलब क्या है? एटम्स, ओके, न्यूक्लियस, एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, एनी चार्ज, ओके, न्यूट्रॉन, ओके। सो नाउ वी इंटरेस्टेड इन de Broglie's wavelength of an इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का de Broglie's wavelength निकालना, and this topic is very 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 important. You will face a numerical also. Okay, okay. मैंने अभी क्या पता था यार, थोड़ी देर पहले मैंने पता किया, तो de Broglie's wavelength is h/mv। तो ये वेवलेंथ तब निकलेगा ना जब इलेक्ट्रॉन को कुछ वेलोसिटी मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी 0 हो गया तो वेवलेंथ तो निकलेगा ही ना। तो मेरा काम क्या है? इलेक्ट्रॉन को पहले वेलोसिटी देना है, ठीक है ना। अब किसी भी चार्ज इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी कैसे देते हैं बताओ? ये हम फर्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी देने के लिए पहले उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस से पास करना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन को एक पोटेंशियल डिफरेंस से पास करा, सो व्हेन इट विल कम आउट ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस, दैट एनर्जी व्हिच विल गेन विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। इतना मैंने पढ़ा हुआ है। यस क्लास? नाउ व्हेन यू चेक दिस टॉपिक इन अ बुक, यू विल सी द बुक डेरिवेशन एंड माय डेरिवेशन, आई विल डू लिटिल बिट डिफरेंट। तो वो जो डिफरेंस है वो सब नोटबुक में लिखोगे, ओके, और बुक में लिखोगे। See, do you understand this? When the electron is accelerated through a potential difference V, it gains some energy EV. We studied in chapter 1. And when it comes out of that region, that energy is converted into kinetic energy. तो वहां से उसको velocity मिल जाएगा, क्योंकि मुझे velocity देना है। Now the electron started moving with some velocity. Now the electron has some mass. That means it is a particle. It is a matter, and it is moving with some velocity. That means it will emit some matter wave. That matter wave I am interested in. ठीक है, दैट मैटर वेव वेवलेंथ आई एम इंटरेस्टेड इन, दैट इज कॉल्ड de Broglie's wavelength। क्लियर? अब उस इलेक्ट्रॉन का मैटर वेव्स निकालने पे मुझे क्या चाहिए? मास इंटू वेलोसिटी चाहिए। अदर वे अराउंड वी कैन से h/p चाहिए। तो हियर आई विल मेक अ डिफरेंस, ओके, फ्रॉम द बुक। मुझे p का चाहिए, तो यहां से मैं p कैसे लाऊं? व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? p²/2m। दिस इज द डिफरेंस आई एम डूइंग हियर। बुक में उन्होंने अलग किया हुआ है। तो मुझे मोमेंटम चाहिए, काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम में कन्वर्ट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का एक्सप्रेशन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी p²/2m। तो व्हाट इज p? √2mev। डाल दो इधर। व्हाट इज वेवलेंथ? de Broglie's wavelength of electron is √2mev, where v is the potential difference through which it is accelerated. अब यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू पता है मेरे को, 6.0 34। m का वैल्यू मुझे पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 - 31 kg, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है। सारा चीज जब डालोगे यू विल गेट 12.27/√3 एंगस्ट्रॉम। दिस एक्सप्रेशन यू नीड टू रिमेंबर। क्लियर क्लास? ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, 12.27/√3 एंगस्ट्रॉम। यहां से कभी ग्राफ भी पूछता है दैट वेवलेंथ वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ क्या होगा,
इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ग्राफ ऐसा होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस। ओके, ये समझ में आया क्या किया मैंने? हमने पहले क्या सोचा, मुझे डी ब्रॉगलीज वेव निकालना है, वेवलेंथ निकालना है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन को पहले मूव कराना पड़ेगा, द इलेक्ट्रॉन शुड हैव सम एनर्जी so that it start moving with some velocity v. So how to give some velocity, how to accelerate an electron? So we have studied in first chapter, to accelerate an electron, any charge particle, we need to allow the charge particle to pass through a potential difference. So we allow the charge particle to pass through some potential difference, so it will gain some energy ev and that is converted into kinetic energy. उसका velocity आ गया. Now to get the de Broglie's wavelength I need momentum. तो form kinetic energy, how to get the momentum? तो वही कॉन्सेप्ट है, ये मैंने अलग किया है बुक से. तो काइनेटिक एनर्जी स्पीड स्क्वायर बाय 2 मास मोमेंटम आ गया, डाल दो. Now we know all the constants values, put it, we will get 12.27 by root 3 angstrom. Okay? अब इसी को अगर मैं न्यूमेरिकल में पूछूं तो कैसे पूछा जाता है? न्यूमेरिकल्स में क्या होता है? इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन दे विल टॉक अबाउट द चार्ज. ओके, अ चार्ज q pass through potential difference v. Now how much energy it gain? qv, that is equals to kinetic energy, that is qv equals to p square by 2m, where this m is what? Mass of the charged particle. That charged particle in numerical may change. It may be a proton, it may be a deuteron, it may be a tritium, okay, it may be an electron, कुछ भी हो सकता है बेटा. ओके, तो यहां से p कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2m qv. Therefore what is de Broglie's wavelength of this charged particle? h by अंडर रूट 2m qv. तब तुम ये वाला फॉर्मूला मत यूज कर देना, ठीक है ना? This formula is valid only for electron because this value we got after substituting the value of mass of electron, after substituting the value of charge of electron. But here, if the charge particle is changing from numericals to numericals, you have to use this basic concept. So don't mug up this formula, try to understand the concept. Okay, done class? So and this is the end of the theory of the chapter, dual nature of matter and radiation, and this is all about we have in our syllabus. That's all class. Thank you very much.